خبروں کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں عمران خان کی تنہائیوں میں مزید اضافہ۔ فیصل آباد سے سابق ایم این اے شیخ خرم شہزاد بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ شیخ خرم شہزاد پریس کانفرنس میں آبدیدہ ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شیخ خرم شہزاد پریس کانفرنس میں آبدیدہ ہو گئے۔ بولے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، مجھ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں، پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ میں پچھلے 35 سال سے اپنے کاروبار کو نہایت کامیابی سے چلا رہا ہوں۔ الحمدللہ میری کاروباری ریپیوٹیشن کی گواہ میری بزنس کمیونٹی ہے۔ میں سیاست نہ کہ باقی سیاستدانوں کی طرح اس کو کاروبار سمجھ کر میں نے کہ میری 11 سال کی گواہ میرے حلقے کی عوام ہے، جس نے مجھے 2013 میں ایم پی اے بنایا اور 2018 میں مجھے ایم این اے بنایا۔ میں نے اپنے دونوں الیکشن میں اپنے حلقے کی غیور عوام کی سپورٹ سے ناقابل شکست شخصیات کو بھاری اکثریت سے ہرایا۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بہت غلط ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور اقامہ والا سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے اور کسی بے گناہ سے کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ہم پاک فوج کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں کسی دباؤ کے بغیر، کسی پریشر کے بغیر ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مرکز پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں۔ آخر میں میرے رویے یا میری زبان سے میرے حلقے کے کسی بزرگ، ماں، بہن، بیٹی، نوجوان کو کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی مڑی لاہور پریس کلب میں بھی مراد راز کی پریس کانفرنس۔ سابق چیئرمین ایف ڈی اے میاں وارث عزیز، پیر احمد شاہ، راجہ یاور کمال، چودھری عدنان، راجہ شکیل بھی موجود تھے۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا۔ مراد راز کا پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزراء اور ایم پی ایز کا علیحدہ گروپ بنانے کا اعلان۔ آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لاہور پریس کلب میں مراد راز کی پریس کانفرنس۔ سابق چیئرمین ایف ٹی اے میاں وارث عزیز، پیر احمد شاہ، راجہ یاور کمال، چودھری عدنان، راجہ شکیل بھی موجود تھے۔ مراد راز کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں۔ مراد راز کا پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزراء اور ایم پی ایز کا علیحدہ گروپ بنانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ پیر احمد شاہ، راجہ یاور کمال، چودھری عدنان، راجہ شکیل بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے۔ امریکہ سے پاکستان آ کر جستجو شروع کی۔ مراد راز کی جانب سے کہا گیا کہ کشتیاں جلا کر پاکستان واپس آیا تھا۔ 2011 میں پارٹی نے جگہ دی، 2013 میں ٹکٹ لے کر الیکشن لڑا، 2018 کے انتخابات بھی جیتا اور وزیر تعلیم بھی رہا۔ کوشش تھی کہ عام آدمی کی زندگی میں آسانی لا سکیں۔ عام عوام کے لیے سیاست کی تھی، کسی اور کے لیے نہیں۔ اور یہاں بات کریں، حکومت نے عوام کو ریلیف دے دیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 76 روپے تک کی مارکیٹ میں کمی ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصل آباد میں حکومت نے عوام کو قیمتوں میں ریلیف دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت نے عوام کو ریلیف دے دیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت 74 روپے تک مارکیٹ سے کم پر دستیاب ہوگی۔ سبسیڈائز گھی کی قیمت 490 روپے مقرر کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں حکومت نے عوام کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بڑی کمی کی گئی۔ برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت میں 74 روپے تک مارکیٹ سے کم پر دستیاب ہوگی۔ سبسیڈائز گھی کی قیمت 490 روپے مقرر کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے حکومت کی جانب سے ریلیف دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بڑی کمی کر دی گئی۔ برانڈڈ گھی اور کوکنگ آئل کی قیمت 74 روپے تک مارکیٹ سے کم پر دستیاب ہوں گی۔ فیصل آباد میں سرکاری نرخوں پر کھاد کا حصول کسانوں کے لیے خواب بن کر رہ گیا۔ مارکیٹ میں اصل قیمت پر کھاد نہ ملنے سے کسانوں کو مشکلات۔
काश्तकारों के शिकवे, कहते हैं कि महंगे दामों खाद खरीद कर अजनास सस्ती कैसे बेचें। फैसलाबाद में डीलर्स खाद की मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। किसान कहते हैं इस वक्त यूरिया की सरकारी कीमत 2500 रुपए है, जो कि ब्लैक में 3500 रुपए में मिल रही है। कंट्रोल रेट पर खाद कहीं से भी नहीं मिल रही, जिस वजह से मसाइल का सामना है। बारीक दाने वाली खाद है, उसका रेट 2500 है, जो हमें 3000-3500 में मिल रहा है, और गवर्नमेंटी रेट उसका 2500 है। उसके बाद जो मोटे दाने वाली खाद है उसका रेट 3000 है, वो भी 3500-4000 में मिल रही है। कम से कम अगर गवर्नमेंटी रेट में भी मिल जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो ब्लैक में सेल होती है, अपनी मर्जी का रेट लगाते हैं। किसान कहते हैं कि महंगी खाद के असरात आने वाले दिनों में अजनास की कीमतों पर भी पड़ेंगे। उनका कहना था कि DAP 11,000 रुपए का बैग है, जो कि खरीदने की सख्त नहीं रखते। हुकूमत काश्तकारों के हालात पर रहम खाकर सब्सिडी का ऐलान करे। यूरिया है वो 11,000 पे पहुंची है, जो कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इस किसान अगर वो लेता है तो उसको बचत कोई नहीं होगी, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये है कि इसको कम अज कम कुछ ना करे तो इसका रेट कंट्रोल किया जाए। काश्तकार कहते हैं मुतलका हुकाम कंट्रोल रेट पर खाद की फराहमी को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। बात करें स्पिनिंग सेक्टर, बंदिश का बोझ साइजिंग और पावर लूम सेक्टर पर शदीद होने लगा। सनतकार फैक्ट्रियां जलाने से कतराने लगे हैं, चलाने से कतराने लगे हैं। मजदूरों की बड़ी तादाद को रोजगार की फिक्र भी लग गई है। गुलाम मोहम्मदाबाद में 70% साइजिंग यूनिट बंद, लागत ज्यादा, कमाई कम रह गई। बचे हुए यूनिट सिर्फ अपना और मजदूर का बरहम रखे हुए हैं। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज ने हालात की संगीनी से खबरदार कर दिया। टेक्सटाइल शोबे के तमाम सेक्टर एक एक करके मुश्किलात के भंवर में फंसने लगे। स्पिनिंग के 50% से ज्यादा यूनिट्स बंद हुए तो साजिंग कारखानों में भी वीरानियों ने डेरे डाल लिए। गुलाम मोहम्मदाबाद में साजिंग सेक्टर के बड़े कारखाने तेजी से बंद होने लगे। साबिक सदर चैम्बर चौधरी नवाज कहते हैं गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में 70% साजिंग यूनिट्स बंद हो चुके हैं। जो चल रहे हैं वो भी निस्फ से कम सलाहियत पर है। पैदावारी लागत बढ़ने से मार्केट में कपड़ा कम फरोख्त हो रहा है, जिससे टेक्सटाइल का पूरा शोबा मुतासिर हो रहा है। इनका मजीद कहना था कि रहती कसर टैक्सेस की भरमार और महंगे बिलों ने निकाल दी है। कोई शक नहीं है कि तकरीबन ये 70% बंद है, तो बाकी चाह रहे हैं क्योंकि जब स्पिनिंग आपकी बंद होगी, प्रोसेसिंग बंद होगी, तो मतलब अल्टरनेटिव जो है वो मतलब साइजिंग भी फिर बंद ही होना है, क्योंकि ना इतना माल आना, ना इतना उसको यार ना काम जब होगा तो फिर सारा कुछ चलेगा। सनतकार कहते हैं अगर हुकूमत ने अब भी तवज्जो ना दी तो मुल्क में बेरोजगारी की नई लहर आएगी। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंग गोजरा रोड की तामीर का मंसूबा, शिकायत की रोशनी में नेस्पाक की जानिब से सैंपलिंग शुरू कर दी गई। पत्थर रेत का मियार और नेशन की पैमाइश भी की गई है। मोहम्मद रमजान मिर्जा की ये रिपोर्ट जानिए। झंग गोजरा रोड 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेरे तामीर है। सड़क की तामीर में नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर जिला इंतजामिया ने इसका मुआयना करवाया। हमारी जो यूनिवर्सिटी है UT लाहौर, वहाँ हमने इसके सैंपल भेजे हैं और उन सैंपल्स की जो है वो रिजल्ट सारे हमारे पास आ गए हैं और रिजल्ट हमने DC साहब से शेयर भी किए हैं और हमारा जो काम है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं वो बिल्कुल जो है हमारी हाईवे की स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक है। दूसरी जानब नेस्पाक ने भी रोड की सैंपलिंग का अमल शुरू कर दिया। नेस्पाक के साइट इंस्पेक्टर ने बताया कि नमूने लेकर लेबॉर्टरी अरसाल कर रहे हैं। हमारा जो मटेरियल है ना वो पहले हमारा UT गया है, रोड JRO साहब भी हमारे कंपैक्शन के रिजल्ट चेक करके गए हैं, तो अब हम असफाल्ट करने के लिए हम बार बार चेक कर रहे हैं। हुकाम कहते हैं कि सड़क की बाकायदा इंस्पेक्शन करके गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल की शिकायत को दूर किया जाएगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद के चक 208 की मरकजी शाहराह इंतहाई खस्ता हाली का शिकार। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, टूट फूट से हादसात मामूल बनने लगे। वासा की जानिब से पाइपलाइन मंसूबे के तहत तोड़ी जाने वाली सड़क तामीर न हो सकी। साबिका हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। चक नंबर 208 की मरकजी शाहराह खस्ता हाली की तस्वीर बन गई। वासा की जानिब से पाइपलाइन मंसूबे के तहत टूटी हुई सड़क तामीर न हो सकी। इलाका मकीन परेशान, कहते हैं कोई महकमा बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तकरीबन 8 महीने हो गए सड़क टूटी हुई ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ MNA MP ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ MNA ਕੋ ਵੀ ਗਏ ਆ, MP ਕੋ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। रही सही कसर सुबह सवेरे से मुसलसल होने वाली हल्की बारिश ने पूरी कर दी। मरकजी शहरा पर बारिशी पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद परेशान, कहते हैं कि मुरम्मती काम न होने से कोफ्त का शिकार है। स्कूल के तालिब इल्मों को गुजरते वक्त शदीद मुश्किल दरपेश आती है। ताजिर कहते हैं कि रोड की खस्ता हाली की वजह से हमारे कारोबार मुकम्मल तबाह हो गए हैं।
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ, 900 ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਾਲੀ ਬਾਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ MNA ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ MP ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਲੰਘਣ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਟੀਚਰਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ हुकूमत ਨੂੰ अर्ज करते हैं कि साडा ये काम छेती तो छेती होना चाहिए। सरकारी महकमों की नाकिस हिकमत अमली की वजह से चक नंबर 208 की मरकजी शाहराह की हालत काबिल रहम हो गई। कैमरामैन मोहम्मद शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। अब बात कर लेते हैं फंड्स के हवाले से। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास फंड्स कम पड़ गए, मुलाजमीन को आइंदा माह की तनख्वाहें अदा करना मुश्किल दिखाई देने लगा। FWMC के लिए ईद उल अजहा की तैयारियां करना भी चैलेंज बन गया। इसी पर मजीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। जो बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर अभी ईद उल अज़हा की तैयारियाँ भी की जा रही हैं और इसके अलावा जो सफाई के काम है उस हवाले से और जो फंड्स के हवाले से ये तमाम तर जो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह से काम किया जा रहा है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। जी अजीम साहब, बताइएगा क्या क्या कुछ किया जा रहा है। ईद की तैयारी बड़ी मुकम्मल ज़बरदस्त हो चुकी है। हमने जो ज़रूरी टेंडर थे वो कर दिए हैं और हमने टेंडर ओपनिंग भी कर ली है। उनकी फाइनेंशियल बिड्स, टेक्निकल बिड्स भी आ चुकी हैं और हम वो चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं। इसमें जी बायोडिग्रेडेबल शॉपर हैं वो इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इसके अलावा जो मशीनरी में चाहिए होगी एक्स्ट्रा, ये काम बहुत ज़्यादा होता है तो मशीनरी भी हमने हायर कर ली है। उसके अलावा बिल्कुल फंड्स का प्रोसेस चल रहा है हमारे पास, मगर फ़ंड की कमी के बावजूद जो हमारी अटेंडेंस है वो ऑलमोस्ट 86% है। आप जब शहर में जाएँ तो आपको तमाम जो मेजर रोड्स उनकी स्क्रैपिंग बड़ी अच्छे से हुई नज़र आएगी और सफाई का निज़ाम बड़ा उन्होंने बेहतर किया हुआ है। कोशिश में है कि हमारी जो समरी मंजूर भी हो गई हमारी 60 मिलियन की CM ऑफिस से, तो उम्मीद है कि जो हमारे फंड्स में जो एक बड़ा इंजेक्शन भी होगा और हमें बड़ा रिलीफ भी मिलेगा। मगर फंड की कमी के बावजूद वर्कर हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। इंशाल्लाह सफाई पे हाजिर की कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जो इस हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में यहाँ पर फंड्स का मामला बना हुआ है, लेकिन जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद नरवाला रोड कलीम शहीद कॉलोनी बाईपास तक स्ट्रीट लाइट्स गैर फॉल हैं। स्ट्रीट लाइट्स खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। शहरियों का कहना है 4 माह से लाइट्स खराब हैं। हादसात में भी इजाफा होने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद। इस टाइम हम मौजूद है नाड़वाला रोड पे, जो है कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 2 से लेके जो आगे ऑनवर्ड जो है यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि 4 महीने से जो है ख़राब है, जिसके बाद जो है रात के टाइम इधर जो है वो हादसात भी पेश आ चुके हैं। साथ ही साथ जो है चोरी डकैती के जो वाक़यात हैं उनमें का भी जो है वो मज़ीद खदशा पैदा होता है। यहाँ पे जो है वो पीछे तक जो है तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो जा रही हैं, लेकिन कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 2 से लेके ऑनवर्ड जो तमाम जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो 4 महीने हो गए हैं वो बंद है, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मकीन और आखिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, पीछे गुलामा मोहम्मदाबाद की ए ब्लॉक तक लाइटें जा रही हैं, आगे क्या लोग नहीं रहते जो यहाँ की जो लाइटें 4 महीने हो गए ख़राब है, बंद पड़ी? आगे सिर्फ इलेक्शन के दिनों में लाइटें कुछ चलती हैं कि जी बंदों को खुश कर देते हैं ये लोग। उसके अलावा यहाँ पे मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे रहता हूँ, अंधेरा ही अंधेरा है आगे ये, क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ रहते हैं, सियासतदान रहते हैं या और कोई बड़ी हस्तियाँ रहती हैं, आगे पता नहीं छोटी हस्तियाँ रहती हैं। हालांकि रहता है मैं भी यहाँ आगे, लेकिन आगे सिर्फ अंधेरा ही है। वहाँ ए ब्लॉक तक लाइट जलती है, तो इससे आगे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ट्रैफिक के मसाइल हैं, आगे चोरी डकैती हैं, यहाँ पे कब्रिस्तान है, ज़रा अंधेरा हो जाता है। सर्दियों में तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि धुंध ज़्यादा होती है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि आगे जो लाइट्स लग गई हैं, इन्वेस्टमेंट सारी हो गई है, बिजली का बिल हमने अपने पल्ले से देना है, लेकिन वो जलाने की इनको अगर तौफीक हो तो इनकी मेहरबानी जला दें, बिल हम देने के लिए तैयार हैं। हाँ जी बिल्कुल, इसी वाले से और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा क्या मुतालबा करते हैं जिला इंतजामिया से? देखें, मुतालबा हमारा बड़ा सीधा सा है, जामिया सा है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और हमारा ये हक है कि हमें यहाँ पे लाइट प्रॉपर दी जाए। अगर हम वहाँ से आते हैं, हमारे साथ कोई ज़्यादती हो जाती है, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, नुकसान हमारा होगा, ठीक है। और हादसा भी होते हैं, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई हादसा पेश आता है। तो गुजारिश यही है कि बजाय इसके कि इलेक्शन का वेट करें, इलेक्शन चूँकि होने नहीं दिए जा रहे, इलेक्शन का वेट करने की बजाय कोई हमें ऐसी फैसिलिटी दी जाए जहाँ पे कि हमें कोई आसानी हो, सफ़र में आसानी हो, कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई नुकसान ना हो किसी का, मेहरबानी होगी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इधर जो इलाका मकीन है उनका भी ये कहना है कि इसके बायस जो है स्ट्रीट लाइट ना खराब होने के बाद जो हमें यहाँ अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट्स आपने जानी है, आपको बताएं निगरान हुकूमत के अवामी रिलीफ के लिए इकदाम। जंग को दीगर शहरों से जोड़ने वाली सड़कों की मुरम्मत का फैसला
डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने 27 मई से कायम मकाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद आरिफ कुरैशी को सर्वे की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। आपको बताएं कि फैसलाबाद, टोबा, भक्कर और सरगोदा समेत दिगर का पिच वर्क भी किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं यहाँ पर निगरान हुकूमत के अवामी रिलीफ के लिए इकदाम। झंग को दिगर शहरों से जोड़ने वाली सड़कों की मुरम्मत का फैसला डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने 27 मई से कायम मुकाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद आरिफ कुरैशी को सर्वे की हदायत कर दी है। फैसलाबाद, टोबा, भक्कर और सरगोदा रोड समेत दिगर का पिच वर्क भी किया जा चुका है। फैसलाबाद, टोबा, भक्कर और सरगोदा रोड समेत दीगर का पैच वर्क भी किया जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। 175 साल पुराने जिले की सड़कें जो हैं वो टूट का शिकार हैं और जिस वजह से यहाँ पे सफर करना मुश्किल है और ये जिला जो है वो दूसरे तहसीलों और जिलों से टूट चुका है। अब निगरान हुकूमत की जानिब से जो है इस जिले की बहाली का काम जो है वो शुरू किया जा रहा है। इस मरहले में जहां पर सड़कें जो हैं वो ज़ेरे तामीर हैं, तो वो सड़कें जो कि टूट का शिकार हैं उनकी बहाली के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जानिब से कायम मकाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आरिफ कुरैशी को हिदायत की गई हैं कि वो झंग, फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड, भक्कर रोड समेत चनेओट और तोबा टेक्सिंग को जाने वाली सड़कों का भी कल से जो है वो मुआयना करेंगे और उनके साथ जो है वो एक्सचेंज हाईवे भी होंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि जहां पर भी गड्ढे मौजूद हैं, सड़क टूट का शिकार है, उसको जो है वो फौरी तौर पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या इसके साथ जिला काउंसिल जो है वो जिम्मेदारियां अदा करते हुए उसकी रिपेयरिंग करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि अवामी रिलीफ फराहम करने के लिए ये इक़दाम जो है वो बर वक्त उठाए जाएं। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के हवाले से इजलास चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री इरफान खोकर ने सदारत की। इजलास में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और सेफ्टी कमेटी के अहदेदारान ने भी शिरकत की। मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में जो है वो एलपीजी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फायर फाइटिंग ट्रेनिंग 2023 के हवाले से जो है वो अजलास का एहतमाम किया गया। अजलास में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एलपीजी सेफ्टी कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान इरफान खोकर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इजलास में क्या तय पाया है। अच्छा सर, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग जो है वो बहुत अहम है एलपीजी के हवाले से, कौन सी जो है वो हदायत दी गई हैं और ट्रेनिंग के हवाले से जो है वो कौन सी मनसूबाबंदी की गई है, इससे मतलब आगाह कीजिएगा। सबसे पहले मैं जी वज़ीर आला पंजाब जनाब मोहसिन नकवी साहब को बेहद मशकूर हूँ। उनसे मेरी 2-3 मुलाकातें हुई और मेरे छोटे भैया को तो अल्लाह ताला उनको आसमानों से बहुत दे। उन्होंने एक मासूम जान बचाई तो इसका मतलब आखिरत में उस शख्स का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। और हमने पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन लॉन्च की है और गैर मेरी सिलेंडर्स का खात्मा किया जाएगा। और फायर फाइटिंग ट्रेनिंग जो है वो पूरे मुल्क में बल्कि पंजाब में कीजिए और सबसे पहले आगाज उसका फैसलाबाद में ये तीसरी ट्रेनिंग होने जा रही है। और मैं सीएम साहब के कहने पे आया हूँ, उसके बाद तमाम गवर्नमेंट के इदारे भी इसमें मुतहरक होंगे और गैर मेरी सिलेंडर के कारखानों पे ऑलरेडी उसके लिए अलग सी कंपेन है, वो छापे मारे जाएंगे। लेकिन उसके लिए लोगों को बताना है कि गैर मेरी सिलेंडर का खात्मा कैसे करना है और आग लग जाए तो जान कैसे बचानी है। मैं समझता हूँ कि हम सब ने मिलकर एक जान बचा ली तो ये बहुत बड़ा काम होगा और इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन लाएंगे। और फैसलाबाद, चूँकि मैं समझता हूँ ये इन्होंने कम वक्त में, फैसलाबाद में कम वक्त में सेफ्टी पे काम किया और इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद से इसका आगाज किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि ट्रेनिंग का मकसद यही है कि गैर मेयारी सिलेंडर जो हैं वो उनका खात्मा किया जा सके ताकि नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके। फायर फाइटिंग ट्रेनिंग के इजलास से मुतल्लिक अवैस हम रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अकाउंट्स की कायमा कमेटी का इजलास, चेयरमैन कमेटी शेख फाजिल ने सदारत की। इजलास में चैम्बर के गुज़िश्ता माह के अखराजात की लिस्ट पेश की गई। चेयरमैन कमेटी शेख फाजिल ने कहा चैम्बर ने पहली बार अपने अखराजात को इंतहाई कम किया है। तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से। शहराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में अकाउंट्स की जो कायमा कमेटी है उसका इजलास आज मुनक्कद हुआ है, जिसको चेयर कर रहे थे शेख मोहम्मद फाजिल जो कि चेयरमैन है इस कमेटी के। और इस कमेटी में ख़ुसूसी तौर पर डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल भी मौजूद थे, उनके साथ साथ दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की।
ख़ास तौर पर जो एजेंडा रहा है वो ये रहा है कि चैम्बर के अखराजात क्या हुए हैं, इनकम क्या थी, और इसी हवाले से गुफ्तगू की गई। और इस हवाले से जो नए अखराजात होने वाले हैं उसकी बाकायदा तौर पर लिस्ट भी बनाई गई और वो एक्सपेंसेस जो हैं वो चेयरमैन के सामने रखे गए और इस हवाले से उनके अखराजात की अप्रूवल भी दी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जो कायमा कमेटी बराए अकाउंट्स होती है उसकी जानिब से यही जो है बताया जाता है, यही एजेंडा होता है कि एक्सपेंसेस यानी अखराजात इदारे के क्या हो रहे हैं और इदारे की इनकम क्या हो रही है, उसके दरमियान फ़र्क कितना है और उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, चैम्बर को किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट में लेके जाया जाए, अखराजात कम किए जाएँ ताकि अकाउंट्स भी मेंटेन हो सकें और साथ ही शेराज आगा करे तो बहुत शुक्रिया आपका। तहसील सदर के 20 पटवारियों में हल्के तकसीम कर दिए गए। एसी सदर कामरान सगीर ने नए भर्ती होने वाले पटवारियों को दिए गए हल्कों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि फैसलाबाद तहसील सदर के 20 पटवारियों में हल्के तकसीम कर दिए गए हैं। एसी सदर कामरान सगीर ने नए भर्ती होने वाले पटवारियों को दिए गए हल्कों में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की तहसील सदर के 20 पटवारियों में हल्के तकसीम कर दिए गए हैं। इसी सदर कामरान सगीर ने नए भर्ती होने वाले पटवारियों में हल्के जो है वो सौंप दिए हैं। तमाम पटवारियों को दिए जाने वाले हल्कों में रिपोर्ट के काम जारी किए गए हैं। पटवारी में हमाद खालिद गेल, हमजा, फिजान अली, शकील, सुभान, उस्मान और दीगर जो 20 पटवारी शामिल हैं, जिसमें अदीलाबाद को चक नंबर 78 जींबे, सुभान खालिद को 26 और सी को चक नंबर 2, मी को चक नंबर 39 में जो है 20 पटवारियों को नामजद जो हल्के हैं वहां पर रिपोर्ट करने के काम जारी किए गए हैं। तमाम जो पटवारी हैं वो भर्ती नई जो है बैच में भर्ती हुई, जिस पर एसी सदर ने 20 पटवारियों में जो है वो मुख्तलिफ देहातों के हल्के तकसीम किए हैं। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग इंतजामिया इंसदाद डेंगू मुहिम तेज करने के लिए मुतहरिक। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट इब्रार हुसैन आदिल ने 85 यूनियन काउंसिल्स में भरपूर इंसदाद डेंगू मुहिम चलाने के लिए इकदाम तेज करने की हिदायत कर दी। अफसरान को सफाई का खास ख्याल रखने और योमिया रिपोर्ट लेने का हुक्म भी दे दिया गया है। मजीद जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, आगाह कीजिएगा। डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकने के लिए तमाम तर महकमे मुतहरक हैं, तो दूसरी जानिब महकमा लोकल गवर्नमेंट को भी हिदायत जारी की हैं कि वो अपने लेवल पर डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम करें। इसी हवाले से महकमा लोकल गवर्नमेंट के डिप्टी डायरेक्टर इब्रार हुसैन आदिल से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि किस किस्म की हिदायत आपको मसूल हुई हैं, ज़िला भर में कितने यूनियन काउंसिल हैं और उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको हिदायत क्या जारी की हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि डेंगू की एक एपिडेमिक जो है वो फ़िज़ा हमारे इस मुल्क में वो एक किस्म की प्रिवेल हुई है काफ़ी सालों से, और हर हुकूमत ने उसके सद्देबाब के लिए इक़दाम किए हैं। मौजूदा हुकूमत ने भी बहुत बेहतर अंदाज में इसको रोकने की कोशिश की है और ख़ुसूसन तौर पे हमारे टोबा के नहायत ही जांफशानी से काम करने वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने हमें ख़ुसूसी तौर पे हिदायत दी हैं कि अपनी अपनी जो है वो यूनियन काउंसिल्स में इसकी आगाही के हवाले से आप कोई सेमिनार करें या वहाँ के लोगों के जो वहाँ के नोटेबल लोग हैं, ख़ुसूसन नंबरदार साहबान जो हैं, तो नंबरदार साहबान के साथ आप मीटिंग अरेंज करें और उन्हें कहें कि पब्लिक को इस चीज़ के साथ जो है वो अवेयर किया जाए, उन्हें कम्युनिकेट किया जाए कि ये डेंगू जो है एक मौलिक मर्ज़ है और इसका सद्देबाब जो है वो हर सतह पे होना चाहिए। तो इस ज़मन में जी हमने हमारे पास हमारे ज़िला में 85 यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हमने और हर तहसील पे हमारा एक ADLG मौजूद है। तो जैसे हमारे टोबा में 32 यूनियन काउंसिल्स हैं, गोजरा में 24 यूनियन काउंसिल्स हैं, कमालिया में 12 हैं और पीरमाल में 17 है। तो हमने सबको जो है ये हदायत जो है जारी कर दी हैं और उन पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए कहा है कि आप अपने दफातर को साफ़ रखें, ख़ास तौर पे वो वाइट वॉश रखें। इसके अलावा कूड़े क्रिकेट के ढेर जो हैं उनको रिमूव करें। इसके अलावा आप जो है वो लोकल सतह पे भी लोगों के लिए आगाही के लिए बैनर्स और इस किस्म के पैनाफ्लेक्स जो है उसको आवेज़ा करें ताकि इस मूज़ी मर्ज से तदारक किया जा सके, उसका सद्देबाब किया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बिल्कुल, ज़िला भर की 85 यूनियन काउंसिल्स के जो सेक्रेटरीज़ हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से जो इलाके के नंबरदार हैं उनको ऑन यूनियन काउंसिल से रोजाना रिपोर्ट की मुबशिर हसन आगाह करें, तो बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करें फैसलाबाद में खवातीन समेत 3 रुकनी बैनुल-ज़िलाई मनशियात स्मगलिंग गैंग गिरफ्तार। मुलज़मान से 100 किलो से ज़ायद चरस और अफ्यून बरामद कर ली गई है। SPCIA इर्तजा कुमैल की पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले फैसलाबाद में समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ये पुलिस फैसलाबाद की बड़ी कार्रवाई, बैनुल अज़लाई मंशियात स्मगलर्स को गिरफ्तार करके 100 किलो से ज़ायद चरस और अफ्यून बरामद कर ली गई। SPCIA इर्तजा कुमैल ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि पुलिस ने खवातीन समेत 3 मंशियात फरोशों को थाना मदीना टाउन के इलाके से हिरासत में लिया। मुलज़मान बैनुल अज़लाई मंशियात स्मगलिंग की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुलज़मान में 1 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। शकील पता लगा मौके से फरार हो गया, जबकि अकील नामी जवान उसको हमने मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ में 2 खातून उनके मौजूद थी, जो एक उनकी रिश्ते में वालदा लगती थी और एक रिश्ते में बहन लगती थी। उनको जब मौके पे उनके आइडेंटिफिकेशन चेक की गई और जो माल उनके पास मौजूद था, जो सामान उनके पास मौजूद था, जब वो खोल के देखा गया तो वो तकरीबन 97 किलो चरस और 4 किलो अफीम उनसे हमें बरामद हुई। इर्तजा कुमैल का मजीद कहना था मंशियात फरोशों की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आइस के कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को भी चेक किया जाएगा। थी ब्रेकिंग द आइस के नाम से, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को ये इनकरेज किया था कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें अगर उनके इदारे में कोई सप्लाई कर रहा है, कोई स्टूडेंट इन्वॉल्व है, या इवन अगर किसी स्टूडेंट को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है तो हम वो भी प्रोवाइड करने को तैयार हैं। इसमें हम अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं। मजीद जो हमारी तरफ से लैगिंग्स थी हम उन पर भी अब काम करना शुरू हो गए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये मामला बेहतर हो जाएंगे। SPCIA का कहना था नई नस्ल को हर हाल में मंशियात के जहर से बचाएंगे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ अली रजा, फैसलाबाद। यहाँ बात करें फैसलाबाद में शोबा खेल की स्कीमें इल्तवा का शिकार। प्रैक्टिस पिचेस और हॉकी की ग्राउंड की तामीर के लिए 12 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस हुए हैं, लेकिन तामीर मुकम्मल ना हुई। इंडोर स्पोर्ट्स, मलिकपुर ग्राउंड, चकझुमरा जिम्नेजियम समेत दीगर मंसूबों पर भी काम शुरू ना हो सका। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली रजा से। जी अली, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिले भर की स्कीमों पर जो है वो काम ना हो सका, जिसके बायस ताहाल अभी ग्राउंड्स और कम्प्लेक्स जो है वो नामुकम्मल है। अगर हॉकी स्टेडियम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे 12 करोड़ 80 लाख से जो है वो इस प्रैक्टिस आस्ट्रोटर्फ और इसके साथ जो है वो ग्राउंड की जो है वो तैयारी की जानी थी, जो ताहाल अभी मुकम्मल ना हो सकी। इसके साथ साथ इंडोर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो 4 करोड़ 50 लाख खर्च होने थे, वो भी जो है वो काम मुकम्मल ना हो सका। मलकपुर में खेलों के ग्राउंड में 9 करोड़ 34 लाख जो खर्च होने थे, ताहाल वो भी जो है वो खेलों का काम मुकम्मल ना हो सका। इसके अलावा चकचुमरा में जिम्नेजियम स्पोर्ट्स जो 4 करोड़ 60 लाख में मुकम्मल होना था, वो ताहाल अभी अधूरा है। इसके साथ जड़ावाला में जिम्नेजियम स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट जो 4 करोड़ 60 लाख पर जो है मुख्तसर था, वो ताहाल अभी तक जो है वो अधूरा है। तो खेलों के मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट और जिले भर की जो जितनी भी खेलें की स्कीमें थी वो तमाम अल्तवा का शिकार है और अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसमें खिलाड़ी जो है वो मायूस है। उनका ये कहना है कि कम्प्लेक्स, इंडोर और मुख्तलिफ खेलों के जो ग्राउंड है उनको तमीर किया जाए। अगर उनका मुकम्मल तौर पर बजट निकल आ चुका है और दिया जा चुका है, उसके बावजूद इनको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। इसके बाद खिलाड़ी जो है वो मायूस, उनका यह कहना है कि खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कम्प्लेक्स, इंडोर या दूसरे बनाए जा रहे हैं, उनको फिल फॉर जो है वो मुकम्मल किया जाए। इसी तरीके से हॉकी स्टेडियम की पहले भी आवाज बन चुका है सिटी 41, तो इस हवाले से खिलाड़ियों का भी यह कहना है कि 12 करोड़ 80 लाख में इसको मुकम्मल करना था, जो ताहाल अभी भी अधूरा है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।